In the series of SEBI Grade A Legal Officer examination, we have discussed a lot of things. Like for example, we have discussed about the salary and profile of this position. We have discussed the cutoff and eligibility criteria for this examination. We have also discussed about the pattern and the syllabus for this examination. We have discussed about the important source and important book list by which you can refer for preparing paper 2 of SEBI Grade A Legal Officer examination, and we have also suggested some strategy by following which you can clear this examination as well. So in continuation of this, today we are going to discuss the 60 days study plan for paper 2 of SEBI Grade A Legal Officer examination. So hello friends, welcome to EduTap. I am Prakash. I am a company secretary and a law graduate, and today we are going to discuss about the 60 days study plan for paper 2 of SEBI Grade A Legal Officer examination. So this we are going to discuss by assuming that exam is going to be conducted in the third week of February 2022. If it is delayed, then you will have buffer to make your preparation stronger. But if it is conducted a little earlier, then in that case you have to revisit, you have to reschedule your entire plan, right? I hope you got the point. So let's start today's discussion. But before having discussion on 60 days study plan, first of all you need to remember that you have to paste the copy of syllabus in front of your study table. This I have already told you earlier, right? So सबसे पहले यहाँ पर जो हमें strategy follow करनी है, that we have to cover the common syllabus first, that is the topics which are part of phase 1 as well as phase 2. So first of all we have to cover those topics. So this should be the first step of your preparation, right? तो ये जो syllabus आपके सामने है, this is the syllabus of phase 2. जहां पर आप देख सकते हैं कुछ टॉपिक्स आर हाईलाइटेड हियर. सो हाईलाइटेड टॉपिक्स आर दोस टॉपिक्स व्हिच आर एक्सक्लूसिवली द पार्ट ऑफ फेज 2 and unhighlighted portion is the common syllabus for both phase 1 as well as phase 2. So first of all what you need to do that you have to cover the common syllabus first which are the part of both phase 1 as well as phase 2. राइट. सो द ये वाले टॉपिक्स जो हैं जो कि अनहाइलाइटेड है, ये कॉमन सिलेबस है, तो सबसे पहले हमें यही प्रिपेयर करना है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द सिलेबस दैट हियर यू कैन सी that all the parts are not the part of your the SEBI examination. Like if we talk about the Constitution of India, so here few parts are the part of your SEBI legal officer examination, right? So this is the good thing about the syllabus, that the syllabus is very well defined. So here you will not get any kind of confusion what to prepare and what not to prepare, because topics are exclusively mentioned in the syllabus itself. Like for example, again if we talk about the Indian Contract Act, so here you can see that chapter 8 to 10 here is mentioned. But if we talk about the phase 1, so chapters 1 to 6 are part of the phase 1, right? So that is why you have to refer the syllabus of both phase 1 and phase 2, which is mentioned in the notification itself of previous year. Similarly, we talk about the Indian Penal Code. So here you can see that all the chapters are not the part of your this examination syllabus, right? So here the topics, the chapters which are mentioned here, you have to exclusively prepare those chapters itself. You do not need to focus on other chapters which are not the part of your syllabus. I am insisting this again and again. Try to stick to syllabus as much as you can, right? Because syllabus is the key here. If you are preparing for topics which are not the part of a syllabus, then it is a kind of wastage of time, right? So आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है. टाइम बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बिकॉज अराउंड 60 डेज हैं आपके पास. सो यू हैव टू प्रिपेयर दोज टॉपिक्स विच आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ठीक है, इसीलिए दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट आपको सिलेबस रेफर करना है, बिकॉज कंपनीज एक्ट की भी अगर हम बात करें तो सारे चैप्टर्स जो हैं कंपनीज एक्ट के, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. Only few parts you can say the part of your syllabus. So that is why you have to prepare only those chapters which are part of your syllabus. I hope you got the point. So that is why you have to refer the syllabus of both phase 1 as well as phase 2. And one more thing, suppose if you are preparing for Indian Contract Act 1872, right? So here you can see that only chapter 8 to 10 is a part of phase 2 examination syllabus. But if you talk about the syllabus of Indian Contract Act in phase 1, then chapter 1 to 6 are part of the syllabus of phase 1.
सो व्हेन यू स्टार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आपको एक सीक्वेंस में खत्म करना है इन इट्स इंटायरिटी, राइट? आपको फेज वाइज उसको डिवाइड नहीं करना है. इफ यू आर स्टार्टिंग विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन फिनिश इट एग्जैक्टली ऑन द लाइंस ऑफ द टॉपिक्स मेंशन्ड इन योर सिलेबस, राइट? आई होप यू गॉट द पॉइंट. अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया है, देन यू फिनिश चैप्टर 1 to 6 एंड चैप्टर 8 to 10 इन अ वन गो. You do not need to divide के भी चैप्टर 1 to 6 अभी कर लेंगे एंड रिमेनिंग पोर्शन विल कवर आफ्टर फेज 2. वो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा. आपने कोई भी एक एक्ट स्टार्ट किया है, देन फिनिश इट इन इट्स इंटायरिटी, राइट? सो आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर. So let's discuss about the 60 days plan, how you need to approach, how you can cover the entire syllabus in 60 days. So here we have divided the topics into various subtopics. आपके syllabus को हमने divide कर दिया अलग अलग topics में, and we'll see separately कि किस तरीके से आप topics prepare कर सकते हैं. So if we talk about the securities laws, तो securities laws consist of the SEBI Act, the Securities Contract Regulation Act and Depositories Act, right? So this you have to finish in 10 days. 10 days along with the mocks and amendments. ठीक है, आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट्स पे अगेन आई एम फोकसिंग दैट आपको अमेंडमेंट्स स्किप नहीं करने हैं. अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अमेंडमेंट्स ध्यान में रखना ही है. स्पेसिफिकली अगर हम सेबी एक्ट की बात करें या सिक्योरिटीज लॉज की बात करें, बिकॉज यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर सेबी एग्जामिनेशन, सो यू कैन नॉट स्किप अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू सिक्योरिटीज लॉज, right? I hope you got the point. So you have to finish these securities laws in 10 days along with the mocks and amendments. Next, if we talk about, so next is about the corporate laws, which consist of Companies Act, Limited Liability Partnership Act and Insolvency and Bankruptcy Code. So सिंस यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टॉपिक्स जो है ये ब्लैक हाईलाइटेड है, दैट इज एलएलपी एक्ट एज वेल एज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. सो दीज टॉपिक्स आर स्पेसिफिकली आर द पार्ट ऑफ फेज 2 एग्जामिनेशन. सो फॉर द टाइम बीइंग आपको ये टॉपिक अभी नहीं कवर करना है. व्हाट यू नीड टू कवर इज ओनली कंपनीज एक्ट फॉर द टाइम बीइंग. इन टॉपिक्स को कब कवर करना है दैट आई विल डिस्कस, राइट? बट फ्रेंड्स, राइट नाउ यू हैव टू प्रिपेयर ओनली कंपनीज एक्ट. सो दैट यू हैव टू प्रिपेयर इन 5 days along with mocks as well as amendments. अब आपको इसमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी है मॉक्स के लिए? फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पर यू हैव सीन दैट द सिलेबस ऑफ कंपनीज एक्ट आर वेरी वेल डिफाइंड, राइट? बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया, लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4. तो यू हैव टू प्रिपेयर chapter wise itself. So अगर if you are preparing for chapter 1 and if you have finished chapter 1 of the Companies Act, then उसके बाद आपको उससे related MCQs देखने हैं. उससे related MCQs आपको करने हैं कि chapter 1 आपने finish कर दिया, so आपको उससे related जो भी MCQs होंगे वो solve करने हैं, so that you will get to know whether you are going in a right direction or not, right? तो इसी तरीके से आपको चैप्टर वाइज चैप्टर ही प्रिपेयर करना है और चैप्टर वाइज चैप्टर ही उसके बाद आपको MCQs भी सॉल्व करने हैं. सो इस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और एग्जामिनेशन वाले डे में यू विल बी इनफ कॉन्फिडेंट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, राइट? सो ये वाले टॉपिक्स एलएलपी एक्ट एंड आईबीसी, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यू हैव टू अवॉइड फॉर द टाइम बीइंग. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो दैट यू हैव टू फिनिश इन 3 days. In 3 days along with mock test, and if there are any latest amendments that you have to cover those as well, right? So here you can see that there are 3 components of your syllabus which you have to cover in around 18 days. 18 days में आपको ये 3 component cover करने हैं, and if you cover these components in 18 days, then friends you will cover 50% of your syllabus. 50% of your syllabus आप खत्म कर सकते हैं within 18 days, right? आप इसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से एक्सटेंड भी कर सकते हैं. दोज हु आर वेरी मच कंफर्टेबल विद दीज टॉपिक्स, दे कैन फिनिश दीज टॉपिक्स अर्लियर एज वेल. और जो कंफर्टेबल नहीं है, दे कैन लिटिल एक्सटेंड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. ठीक है, अगर 18 डेज के अगर आप 20 डेज भी कर रहे हैं, देन देयर इज नो इशू अबाउट दैट, राइट? बिकॉज in that case you will cover the 50% of your syllabus, which is a big achievement for you. So I hope you got the clarity. Next, if we discussed about, so there is the category of administrative law, principle of natural justice, jurisprudence and interpretation of statutes, important Latin terms and maxims. So this is a component, the weightage of which is 10%, and you have to finish this within 2 days, right? So ये कंपोनेंट में बहुत ज्यादा कुछ कवर करने के लिए नहीं है, राइट? तो इसको आप विद इन 2 days में भी कवर कर सकते हैं. एंड यू हैव टू सॉल्व मॉक्स एज वेल. इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस कंपोनेंट आपको सॉल्व करने हैं, सो दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट दैट अब इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, सो यू कैन इजिली सॉल्व, यू कैन इजिली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट, सो नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट.
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. But here आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट you do not need to prepare right at this moment because it is a part of phase 2 only. So हमें कॉमन सिलेबस पहले प्रिपेयर करना है. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको प्रिपेयर करना है, एंड दैट टू विद इन 5 डेज. ठीक है, आपको 5 डेज के अंदर इन टॉपिक्स को, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आपको प्रिपेयर करना है अलॉन्ग विथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड अमेंडमेंट्स. सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. ये दोनों टॉपिक आपको कवर करने हैं. अगेन स्ट्रेटजी आपकी सेम रहेगी. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जब आपने एक चैप्टर फिनिश कर लिया, देन यू हैव टू गो फॉर मॉक्स, राइट. आपको जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है रिलेटेड टू दैट चैप्टर, आपको वो सॉल्व करने हैं. उसके बाद आपको चेक करना है वेयर अभी डेफिशिएंसी कहां पर है आपके पार्ट पर, कौन सा टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है उस पर्टिकुलर चैप्टर में. सो दैट यू हैव टू एनालाइज, राइट. हमें सिर्फ सॉल्व करना हमारा पर्पस नहीं है, रादर हमें खुद को बेटर बनाना हमारा पर्पस है. दिस इज द पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मॉक टेस्ट देकर आपने दे दिया फॉर द नेम सेक एंड उसके बाद आप इजिली क्लियर कर सकते हैं एग्जाम. नहीं, मॉक टेस्ट का जो पर्पस होता है वो दूसरा होता है. दैट विल डिस्कस लिटिल लेटर इन दिस वीडियो इटसेल्फ. देन नेक्स्ट इन द कैटेगरी ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड लॉ ऑफ ट्रस्ट. लॉ ऑफ ट्रस्ट जो है वो पार्ट है हमारे फेज 2 सिलेबस का, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेज 1. सो फॉर द टाइम बीइंग आपको इसको नहीं प्रिपेयर करना है, आपको यही 4 टॉपिक से भी प्रिपेयर करने हैं. द वेटेज ऑफ विच इज 15%. ठीक है, 15% वेटेज है आपका. सो दिस कंपोनेंट यू हैव टू प्रिपेयर इन 5 डेज, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं. आप इसको जो बुक लिस्ट हमने सजेस्ट की थी वहां से भी कर सकते हैं. और लेजिस्लेशन जो हमारे लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द बेयर एक्ट ऑल्सो, राइट. तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको एफर्ट्स नहीं लगाने हैं. यू कैन सिंपली प्रिपेयर दीज टॉपिक्स इन 5 डेज. But again the same thing, same principle will apply here also, that you have to solve a lot of mocks along with the topics, right. तो जैसे ही आपने ये टॉपिक लॉ ऑफ टॉर्ट्स किया, you have to solve MCQs, important MCQs related to this examination, related to pattern of this examination. उसके साथ साथ ही आपको करना है. लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपने फिनिश किया, आपको वहां पे सॉल्व करना है. ठीक है, सिमिलरली जैसे ही आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपने फिनिश किया, आपको उसका एमसीक्यूज कवर करने हैं, एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट इन द कैटेगरीज आईपीसी, दैट इज इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड लॉ ऑफ एविडेंस. क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ही वास्ट हैं, ये टॉपिक्स बहुत ही बल्कि हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स इन 20 डेज, राइट. आपको 20 डेज में ये टॉपिक्स आपको फिनिश करना है अलॉन्ग विथ मॉक्स एंड अमेंडमेंट्स. सिमिलरली जैसे ही जो भी टॉपिक सपोज सीपीसी में कोई चैप्टर मेंशन किया गया था या आईपीसी में जो भी चैप्टर मेंशन किया है, सो आफ्टर फिनिशिंग दैट चैप्टर यू हैव टू सॉल्व इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू दैट चैप्टर. दिस यू नीड टू रिमेंबर. आप ये ना सोचे कि मैं पूरा आईपीसी फर्स्ट आई विल फिनिश देन आई विल सॉल्व द एमसीक्यू. आपको ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू सॉल्व द एमसीक्यूज चैप्टर वाइज. ठीक है, आपने एक चैप्टर फिनिश किया, ट्राई टू सॉल्व द एमसीक्यूज ऑफ दोस चैप्टर. सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. So the weightage of this component is 10%, right. तो यहाँ पर 10% कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का वेटेज 10% है यहाँ पर. सो आपको सिमिलरली इसी फॉर्म में आपको इन्हीं ऑर्डर में आपको प्रिपेयर करना है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर मैक्सिमम इन अ लेस स्पैन ऑफ टाइम, राइट. आपको कम समय में आपको ज्यादा चीजें प्रिपेयर करनी है. देन द लास्ट कंपोनेंट इज अबाउट द टैक्सेशन, जनरल प्रिंसिपल्स, capital gains tax, securities transaction tax, right. Since this is the part of phase 2, since this is the part of the syllabus of phase 2 only, so you do not need to prepare this, write this at this moment. So if you see, so we will discuss about the 50 days plan. तो हमने 50 days plan अभी डिस्कस कर लिया है, जिसमें we have finished our entire component in 50 days, but here we are discussing about the 60 days study plan. सो वो जो 10 डेज हमारे पास जो रिमेनिंग है उसका क्या हम करने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. बट उससे पहले आप एक ये चीज समझें कि जो भी आपके टॉपिक्स फेज 2 से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ फेज 2 वाले जो टॉपिक्स है, राइट, दोज टॉपिक्स यू कैन प्रिपेयर आफ्टर फेज 1 ऑल्सो. इफ यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू प्रिपेयर दोज टॉपिक्स राइट नाउ एट दिस मोमेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you cover the common syllabus, you forget about the topics which are exclusively the part of phase 2 syllabus. उसके बाद if अगर टाइम आपके पास बचता है, if you have enough time before phase 1, then you can prepare these topics as well. but अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है to prepare these topics before phase 1, so आप इन टॉपिक्स को रहने दें और जैसे ही phase 1 एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा
आफ्टर दैट यू हैव टू फिनिश दीज टॉपिक्स इन द 7 days, राइट। तो यहाँ पे 7 days का प्लान लिखा हुआ है आपको पर टॉपिक्स के लिए। सिंस दीज टॉपिक्स आर नॉट वेरी बल्की, सो यू कैन प्रिपेयर दिस टॉपिक इन द टाइम स्पैन ऑफ 7 days. So here you can see that Indian Partnership Act you have to prepare in 2 days along with important MCQs, that is mocks and amendments, right? And law of trust within 1 day along with mocks and amendments. ठीक है, ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना। यू कैन सिंपली रेफर द बेयर एक्ट। टैक्सेशन वाले टॉपिक के लिए यू कैन यूज गूगल, हमने डिस्कस किया था जब when we were discussing about the important source and book list, so we have discussed about that. For this component you can use the Google as well. So for this component you have to complete these components within 1 day along with mocks and amendments. Then next, about the Limited Liability Partnership Act, this you can for this you can refer Bear Act also. So that too you have to finish this in 1 day along with mocks and amendments. And if we talk about the IBC, that is Insolvency and Bankruptcy Code, so that you have to finish in 2 days. आप इसको भी Bear Act से prepare कर सकते हैं plus mocks and amendments, right? So the thing is that अगर जो topics which are specifically the part of phase 2, you can skip those topics right now at this moment. First of all, you have to focus on the topics which are the part of common syllabus of both phase 1 as well as phase 2. और जैसे ही phase 1 आपका हो जाता है, phase 1 के immediately बाद within the time span of a week you can prepare these topics, right, which are the part of phase 2 only. So I hope you got the clarity. So we have discussed about the 50 days formula, right? 50 days का जो plan हमने discuss कर लिया अभी तक कि 50 days में you have to prepare the common syllabus. I'm saying here that we have discussed the 50 days plan for common syllabus. ठीक है, common syllabus के लिए which are the part of both phase 1 as well as phase 2, आपको उन्हें 50 days में finish कर लेंगे आप। Then आपके पास बचेंगे 10 days, right? Since we are discussing about the 60 days plan, so you will have around 10 days in your hand if you are going by this schedule, right? So जब वो 10 days बचेंगे तो उस 10 days में हमें क्या करना है? उन 10 days में हमें पार्टी करनी, राइट? सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है। सिंस वी हैव फिनिश द सिलेबस ऑफ विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 50 days, तो हमें पार्टी करना है, राइट? सिलेबस खत्म होने की खुशी में वी हैव टू सेलिब्रेट। इज इट लाइक दिस? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पार्टी तब तक नहीं करनी है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। यू हैव टू अवॉइड पार्टी, यू हैव टू अवॉइड सेलिब्रेशन, राइट? सो आपको जो भी टाइम आपको मिल रहा है, यू फोकस दैट ऑन योर कंटेंट पार्ट। आपको चीजें कवर करनी है, जितना जल्दी आप फिनिश कर लेंगे आपके पास एक एज आ जाएगा, सो दैट यू कैन रिवाइज दोज टॉपिक्स एज वेल। ठीक है, तो जो 10 days बचेंगे उसमें आपको पार्टी नहीं करनी है, कोई आपको सेलिब्रेशन नहीं करना है, रेदर यू हैव टू फोकस ऑन द मॉक टेस्ट। मैं हर सेशन में आपको बता रहा हूं दैट मॉक टेस्ट आर वेरी रेलेवेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, राइट? क्योंकि लीगल एक ऐसा एरिया है, अगर हम डिस्कस करें तो लेजिस्लेशन से किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे पूछा जा सकता है। सो उन्हीं चीजों को आपको खुद को अगर एक्वेंट करना है उन सारी चीजों से, सो यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट एज मच पॉसिबल एज यू कैन। ठीक है, जितने ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आज अगेन आई एम एम्फसाइजिंग दिस थिंग। तो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट विद इन जो भी आपके पास लास्ट के जो 10 days बचेंगे उसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट, आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। एंड वन मोर डिस्क्लेमर है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडियन पीनल कोड की, इंडियन पीनल कोड, राइट? तो इंडियन पीनल कोड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जुडिशरी एग्जामिनेशन एंड इंडियन पीनल कोड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन। पर जो लेवल है, जो क्वेश्चंस का लेवल है, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट, राइट? जुडिशरी का जो लेवल है क्वेश्चंस का पूछने का, वो लिटिल हायर साइड है, बट आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन, देन यू डू नॉट नीड टू प्रिपेयर आईपीसी एट दैट लेवल। ठीक है, आपको उस लेवल पे प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सेबी का लेवल है वो उस लेवल का नहीं है, बल्कि आपको लिटिल लोअर साइड आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। बिकॉज वी आर टारगेटिंग सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है दैट यू हैव टू फॉलो द पैटर्न, यू हैव टू फॉलो द लेवल, राइट? और वो पैटर्न और लेवल का आइडिया आपको कैसे लगेगा? बाय रेफरिंग PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट आपको सिलेबस और PY को आपको जितने ज्यादा बार आप कवर कर सकते हैं, यू हैव टू कवर देम। तो PYQ के थ्रू आपको
PYQ कवर रेफर करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि किसी टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी डेप्थ से क्वेश्चन आ रहे हैं. सो द थिंग इज दैट जो भी आप मॉक टेस्ट आप कवर करने जा रहे हैं, जो भी मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे, try to refer those mock tests which are SEBI legal officer examination specific. ठीक है, जो कि आप जुडिशरी की आपने आईपीसी पढ़ लिया, then you start solving the questions from judiciary examination. That is not going to help you. Believe me, that is not going to help you. आपको जो चीज हेल्प करेगी वो यही कि आपको जो सेबी ग्रेड लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन का जो मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जो उस लेवल के जो एमसीक्यूज अवेलेबल है, आप उसको ही सॉल्व करें तो आपको बेटर क्लैरिटी आएगी. एंड देन that will make the process easier for you. आपके लिए एक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा इजी हो जाएगा. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. ठीक है, बट उसके बाद क्या सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेना ही एकमात्र अचीवमेंट है या हमारे लिए एक टास्क है? नहीं, यू हैव टू असेस योरसेल्फ आफ्टर सॉल्विंग मॉक टेस्ट. बहुत सारी आप गलतियां करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर भी जिस भी कंपोनेंट में आपसे गलती हो रही है, आपको वो कंपोनेंट अगेन रिवाइज करना है फ्रॉम योर कंटेंट. जो भी लेजिस्लेशन आपने कवर किया है, आपको वहां से उसको रिवाइज करना है और अगेन आपको वो एमसीक्यू सॉल्व करना है. ठीक है, और अगर आपको तब तक ये प्रोसेस करना जब तक आप वो एमसीक्यू सही सॉल्व नहीं कर देते हैं. सो आई होप यू आर गेटिंग. तो आपको असेस भी करना है, असेसमेंट भी करना है अपने एमसीक्यूज का, किस तरीके से आप टॉपिक सही समझ पा रहे हैं, आप टॉपिक को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये आपको असेसमेंट करना है. अदरवाइज सॉल्विंग द पर्पस ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज विल फेल. राइट, वो फेल हो जाएगा. कोई मतलब नहीं है ऐसे एमसीक्यूज सॉल्व करने का अनटिल एंड अनलेस यू डू असेसमेंट आफ्टर सॉल्विंग एमसीक्यूज. तो आपको असेसमेंट करना ही करना है. असेसमेंट के बाद आपको अगर वो गलतियां आपको क्रॉस चेक करनी है कि कहां पे आपने गलती हुई, कौन सा कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, देन यू हैव टू रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट, देन अगेन यू हैव टू सॉल्व दोज एमसीक्यूज. ये पूरा प्रोसेस है जब तक आप वो चीज सही नहीं कर देते हैं. और आपको जहां पर भी आप गलती कर रहे हो उस चीज को आप रिवाइज भी करें. राइट, ऐसा नहीं कि आपने एक बार जो चीज सही कर दी या जो चीज गलत कर दी आपने उसको करेक्ट करके बस आप आगे बढ़ गए. यू हैव टू रिवाइज दैट सो दैट द एक्चुअल मिस्टेक यू सो दैट यू कैन नॉट कमिट एक्चुअल मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो. एंड वन मोर थिंग अबाउट द एमसीक्यूज अबाउट द मॉक टेस्ट, दैट आप सपोज यहां पर हमारे पास कोई क्वेश्चन है और उसमें 5 टॉपिक्स 5 ऑप्शंस दिए हुए. राइट, देयर आर 5 ऑप्शंस फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन सेबी एग्जामिनेशन. सो इन दैट केस जो भी सपोज यहां पर आपने मॉक टेस्ट में या एमसीक्यूज आप जो भी सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता है कि दैट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आर्टिकल 14, बट आपको क्या अप्रोच रखनी है कि जो अदर ऑप्शंस भी यहां पर अवेलेबल हैं आपके सामने, यू हैव टू रीड अबाउट दोज ऑप्शंस एज वेल. ठीक है, आपको उन ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ना है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर यहां पे आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 15, 16 अगर ऐसे दिए हुए हैं तो आपको उन सारे आर्टिकल के बारे में पढ़ना है. इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि अगर वो क्वेश्चन उस टाइप से उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इफ अपीयर्स इन योर एग्जामिनेशन, देन यू कैन इजीली डू इट. सो आई होप यू गॉट इट. क्या कहना चल रहा है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट यू कैन नॉट इग्नोर. ठीक है, मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने ही है, एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने ही करने हैं. और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अगर आपको मिल पा रहे हैं देन इट इज वेल एंड गुड. ठीक है, अगर आपको जैसा सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, लाइक फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट का अगर चैप्टर 1 टॉपिक में दिया हुआ है, तो अगर आपको चैप्टर 1 स्पेसिफिक अगर आपको एमसीक्यूज मिल पा रहे हैं, देन इससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता इस एग्जाम के रिगार्डिंग. सो दिस वाज द एंटायर प्लान ऑफ 60 डेज स्टडी प्लान. आप इसको फॉलो करके आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. बट एक क्वेश्चन अभी आपके मन में और आ रहा होगा कि कुछ टॉपिक से रिलेटेड जो कि थोड़ा बड़े टॉपिक्स हैं, उसमें टाइम बहुत कम हमने मेंशन किया, लाइक 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज. तो क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहा होगा दैट इज इट पॉसिबल टू फॉलो दिस प्लान? क्या ये प्लान पॉसिबल फॉलो कर पाना पॉसिबल है? सो इसका आंसर जो है यस यस यस, एब्सोल्युटली यस. ठीक है, पूरी तरीके से 100% पॉसिबल है आपके लिए ये प्लान फॉलो कर पाना. उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं. व्हाट इज द रीजन? The reason being that being a law graduate, you have already covered more than 90% of the syllabus which is the part of your SEBI graded legal officer examination. And since you have already covered more than 90% of the syllabus, then आपको कुछ भी नहीं बचता है. Just you need to revise the topics again. बस आपको रिवीजन करना है, आपको कोई भी नया टॉपिक प्रिपेयर नहीं करना. राइट, तो जो भी सपोज कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं लाइक सेबी एक्ट हो गया, जो भी हमारे सिक्योरिटीज लॉ से रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन है, दे आर द न्यू बिकॉज वी डू नॉट कवर दीज टॉपिक्स अबाउट द सिक्योरिटीज लॉज इन अवर लॉ ग्रेजुएशन. राइट, तो हम ग्रेजुएशन में उन चीजों को रेफर नहीं करते हैं. सो दैट इज वाई. बट यहां पर मोर देन 90% सिलेबस यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन योर ग्रेजुएशन.
तो यहां पर आपके लिए कुछ नहीं बचता है, जस्ट व्हाट बचता क्या है यहां पर, सिर्फ आपके लिए रिवीजन। तो आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है यहां पर। दैट इज वाई दिस इज पॉसिबल फॉर यू टू फॉलो दिस 60 डेज प्लान। एक दूसरा, अगर मैं इसका दूसरी साइड अगर मैं बात करूं इसकी, तो और रीजन क्या हो सकते हैं कि वेल डिफाइंड सिलेबस है, राइट। अगर आप कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं, सो यू डू नॉट नीड टू रेफर द एंटायर कंपनीज एक्ट, राइट। एंड टू एंड कंपनीज एक्ट कवर करने की जरूरत नहीं है आपको। रेदर जो चैप्टर्स आपके सिलेबस का पार्ट है, यू हैव टू कवर ओनली दोज चैप्टर्स। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है दैट द सिलेबस ऑफ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन इज वेरी वेल डिफाइंड। आपको एक एक टॉपिक, एक एक कंपोनेंट, सब कंपोनेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको दिए गए हैं, और इसका एडवांटेज आपको लेना है एक्चुअल एग्जामिनेशन में। सो इफ यू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू टॉक अबाउट द कंपनीज एक्ट, तो इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सिर्फ वही चैप्टर स्पेसिफिक प्रिपेयर करना है। सो डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द एंटायर लेजिस्लेशन, कि यहां पूरे लेजिस्लेशन को कवर करने के लिए वी डू नॉट हैव इनफ टाइम। सो फॉरगेट अबाउट दैट। The thing is that you have to cover only those parts, only those chapters which are the part of your syllabus. So that is why to cover this plan, to follow this 60 days plan is quite possible, and absolutely it is possible. So you have to follow this. अगर आपने ये चीजें टाइम बाउंड मैनर में कर ली, then आपका रिजल्ट बोलेगा, राइट। और हम फिर आपके साथ हैं ही आपके हर स्टेप में आपकी प्रिपरेशन के। So this was about the 60 days plan, जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं from tomorrow onwards. So this was all about the plan, friends. So I hope you enjoyed the session. अब हम आएंगे कुछ नए टॉपिक्स को लेकर, कुछ नई चीजों को लेकर और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेकर। सो टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे। And we have one more announcement that we are coming with a big surprise for you. So but for that you have to stay tuned with us. And till then, goodbye and have a good day.